Any doubts? किसी भी क्वेश्चन में? Okay. So question 6 तक we did yesterday. Read question number 7. देखिए, the budgets for activity and cost of PQ are limited for the first 3 quarters are shown below. We have for quarter 1, 2 and 3 different elements. कहाँ पे कितना हमारा रेवेन्यू आया है और कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है. So we have sales in units and production in units. This is given in quantity, not in amount. Cost, direct material A, B, production labor, then manufacturing overheads excluding depreciation. Depreciation of production machinery. If you will see depreciation, the depreciation is 20, 20, 20 in each quarter. So we can say depreciation is a fixed cost. Administration, again 25, 25, 25. So again it is fixed. Selling and distribution. So except for depreciation and admin cost, we'll have to find out बाकी के जो भी cost है, are they variable or are they semi-variable. So generally direct material and production labor should be variable. Generally they are generally variable, but even then we'll have to check. जो भी अमाउंट दी है, these are in thousands. In fact everything is in thousands. ऊपर जो क्वांटिटी दी है और ये अमाउंट दी है, इनके बेसिस पे you will have to find out per unit cost to check whether these costs are variable or semi-variable. So all the production cost, this is a general phenomena कि material, labor वगैरह जो भी लगता है, it is applied on the quantity produced, not on the quantity sold. तो आप जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करिए उससे डिवाइड करके देखोगे इज द पर यूनिट सेम और नॉट. लाइक फॉर डायरेक्ट मटेरियल ए, फॉर क्वार्टर 1 वी हैव 60,000 रुपीज एज एक्सपेंस एंड हमारा प्रोडक्शन इज 10,000. सो पर यूनिट मीन्स 6. देन फॉर क्वार्टर 2 इट्स 1,20,000, 120, whereas production is 20. So again per unit will be 6. And for quarter 3 again the per unit will be 6. So that means this direct material A is variable. वैसे ही B के लिए भी चेक करो, is B variable? B का per unit is 5 rupees. So again B is variable. What about production labor? No, production labor is not variable. So it's neither fixed nor variable. It is semi-variable. Then depreciation, sorry, manufacturing overhead. ये भी check करो. Again this is semi-variable. Depreciation and admin, they are fixed. Selling and distribution. Now selling and distribution has to be absorbed on sales, quantity sold. It is not related to the quantity produced. It is always related to the quantity sold. So for this per unit जब आप चेक करोगे तो use the sales quantity. It's not variable. So all these 3 costs, that is production labor, manufacturing overhead and selling and distribution, all these 3 are semi-variable. We will have to segregate them in variable and fixed elements. आगे देखें. The figures shown above represent the cost structure of PQR Limited which have the following major features. Fixed elements of any cost is completely independent of the activity levels. तो fixed element को activity level से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे भी जानते हैं, उसमें उन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी. Variable element of each cost displays a linear relationship with activity level. जो भी वेरिएबल एलिमेंट होगा कॉस्ट का, द वेरिएबल पार्ट ऑफ एनी कॉस्ट, दैट विल हैव अ लीनियर रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी प्रोड्यूस, विद द एक्टिविटी लेवल. कितना क्वांटिटी हम बना रहे हैं या बेच रहे हैं उससे इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो वो तो हमें पता है. दैट इज व्हाई वी फाइंड आउट द पर यूनिट कॉस्ट एंड वी से जिसका पर यूनिट सेम है दैट विल बी वेरिएबल. Except that the variable labor cost becomes 50% higher for activity in excess of 19,000 units per quarter due to the necessity of overtime working.
बोला है नॉर्मली जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है वो सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी क्वांटिटी, मतलब सब पर यूनिट में सेम है एक्सेप्ट फॉर प्रोडक्शन लेबर। प्रोडक्शन लेबर जैसे अभी हम सेमी वेरिएबल समझ रहे थे, एक्चुअली इट इज वेरिएबल, लेकिन उसके वेरिएबल में एक रेंज के बाद चेंज हो रहा है। देयर इज अ कैपेसिटी लेवल टिल 19,000 यूनिट। अगर आप 19,000 यूनिट तक बनाते हो, लीनियर रिलेशनशिप इट विल शो, पर यूनिट विल बी द सेम। बट अगर 19,000 से ज्यादा आपने बनाया, देन वी विल हैव टू वर्क ओवर टाइम, जिसके लिए हमें ओवर टाइम प्रीमियम देना पड़ेगा। तो 19,000 से जितने ज्यादा यूनिट्स आप बनाते हो, इन दैट केस हमारा ये जो लेबर कॉस्ट है, दिस बिकम्स हायर बाय 50%। 50% और ज्यादा हो जाता है, ओवर टाइम प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है। ये समझ में आया? ओके ऊपर देखो, अभी क्वार्टर 1 में हमारा प्रोडक्शन था 10,000, तो यहाँ पर कोई ओवर टाइम नहीं लगा होगा। क्वार्टर 2 में प्रोडक्शन वॉज 20,000, यहाँ ओवर टाइम हमने किया होगा, तो इसलिए आपका पर यूनिट विल नॉट बी सेम फॉर 1 and 2। वेराज अगर क्वार्टर 3 का देखोगे 15,000, अगेन कोई ओवर टाइम नहीं है, तो अगर आप 1 और 3 का निकालोगे ना पर यूनिट लेबर कॉस्ट, इट विल बी द सेम। क्वार्टर 1 का लेबर प्रोडक्शन लेबर इज 180, क्वांटिटी इज 10, तो दैट मीन्स 18 रुपीज पर यूनिट। क्वार्टर 3 का भी निकालो, है 18? नहीं है? 15.33 क्या? अच्छा, मतलब इट्स नॉट द सेम। ओके, दैट मीन्स ये प्रोडक्शन लेबर जो है, इसको भी हमें पहले सेग्रीगेट करना पड़ेगा फिक्स और वेरिएबल में। जो वेरिएबल एलिमेंट है उसमें फिर ये वेरिएबिलिटी अप्लाई होगी, मतलब ये जो एज इट इज दिया है ये पूरा वेरिएबल नहीं है, दिस इज सेमी वेरिएबल। इसको सेग्रीगेट करेंगे, सेग्रीगेशन के बाद फिर हमें ओवर टाइम का अप्लाई करना पड़ेगा रूल। बट व्हेन यू विल सेग्रीगेट, तो सेग्रीगेशन का हमने कल देखा था फॉर्मूला। सेग्रीगेट जब हम करते हैं, एट दैट टाइम वी फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। ओके, ये सेग्रीगेशन करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंटेटिव लेना पड़ेगा जिनमें आप डिफरेंस निकालोगे। दोज 2 पॉइंट्स शुड बी क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 3। क्वार्टर 2 को आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं ले सकते, बिकॉज क्वार्टर 2 में ओवर टाइम वर्किंग हो रही है, 1 और 3 में नहीं हो रही है। तो जब आप नॉर्मल लेबर कॉस्ट निकालोगे, नॉर्मल लेबर रेट, वेरिएबल लेबर रेट विच इज नॉर्मल एक्सेप्ट फॉर ओवर टाइम प्रीमियम, वो निकलेगा क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 का डिफरेंस लेके। ये समझ में आया? एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट? आगे, द वेरिएबल एलिमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इज अ फंक्शन ऑफ सेल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का जो वेरिएबल एलिमेंट होगा, अगेन दिस इज सेमी वेरिएबल, इसको सेग्रीगेट करेंगे, इसका जो वेरिएबल एलिमेंट होगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ सेल्स। ये नहीं भी बोलते हैं तो भी हम यही लेते हैं। प्रोडक्शन के जितने भी कॉस्ट होंगे दे आर अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, जितनी क्वांटिटी बनाओगे उतना वो कॉस्ट लगेगा। वेराज सेलिंग कॉस्ट जितना भी होगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी सोल्ड ऑलवेज। ऑल अदर कॉस्ट विद अ वेरिएबल एलिमेंट आर अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम। सेलिंग एक्सपेंसेस को छोड़ के बाकी के सारे कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन वॉल्यूम के फंक्शन है। एक्टिविटी फॉर ईच क्वार्टर इज स्प्रेड इवनली थ्रू आउट दैट क्वार्टर। In quarter 4, production level will be set equal to sales level. Quarter 4 में बोल रहे हैं जितना सेल्स है उतना ही प्रोडक्शन होगा। जैसे बाकी के तीनों में तो अलग अलग दिया हुआ है सेल्स एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी, क्वार्टर 4 में जितना भी आप सेल्स लोगे उतना ही आप प्रोडक्शन भी लोगे। Production and sales in this quarter is expected to range between 15,000 units and 21,000 units. The most likely volume is 18,000 units. फोर्थ क्वार्टर में जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एज वेल एज सेल्स है दैट इज 15 to 21। इस रेंज में कुछ भी हो सकता है सेल्स एंड प्रोडक्शन, एंड द मोस्ट लाइकली वॉल्यूम इज 18,000। In month 9, it will be possible to accurately estimate the sales for quarter 4. 9th month में आके हम accurately उसको बता पाएंगे कि एक्चुअली सेल कितना होगा। अभी तो हम स्टार्टिंग में है तो हम अभी से नहीं बता पा रहे। Then cost structure will remain the same as in quarter 1 to 3 except the following.
फर्स्ट से थर्ड क्वार्टर में जो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर हमने देखा है ऊपर, सेम वही कॉस्ट स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, एक्सेप्ट देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं जहां पर चेंज होगा इन क्वार्टर 4. बाकी सारे कॉस्ट एज इट इज अप्लाई होंगे. लेबर वेज रेट विल इंक्रीज बाय 12.5%. लेबर वेजेस का रेट बढ़ रहा है तो लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगा. Variable labor input per unit of output will decrease due to learning curve effect such that 80% of the previous labor input per unit of output will be required in quarter 4. लर्निंग कर्व इफेक्ट का मतलब होता है एज एंड व्हेन वी लर्न, हम जैसे जैसे किसी एक्टिविटी को रूटीन में करते जाते हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो दैट इंक्रीजेज अवर एफिशिएंसी. जैसे आप जब पहली बार कोई चीज पढ़ते हो यू विल टेक मोर टाइम, सेकेंड टाइम वही चीज रिवाइज करोगे उसका 70% टाइम लगेगा, थर्ड टाइम फिर वही क्वेश्चन जब पढ़ोगे 40% टाइम लगेगा, उसके बाद फिर जब पढ़ोगे हो सकता है आपको देखते ही याद आ जाएगी क्या क्या फिगर्स हैं. ऐसा होता है ना, व्हेन वी गो ऑन रिवाइजिंग एनीथिंग तो हमारे दिमाग में वो चीज फिट होती जाती है, अवर एफिशिएंसी इंक्रीजेस, हम कम टाइम में ही वही चीज कर पाते हैं. तो ये वर्कर्स जो एक जैसे ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ही जैसे चीजें बना रहे हैं बार 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 बार, उनके लिए भी ये लर्निंग कर्व इफेक्ट काम आता है. जब शुरुआत करते हैं वो किसी चीज को बनाना तो दे टेक मोर टाइम इनिशियली, जैसे जैसे उन्हें एक्सपीरियंस होता है उसका अगेन एंड अगेन मैन्युफैक्चर करके, सो ग्रेजुअली द टाइम टेकन रिड्यूसेस, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. बोला गया है लर्निंग कर्व इफेक्ट की वजह से लेबर का जो वेरिएबल इनपुट है पर यूनिट, जितना वेरिएबल लेबर टाइम लग रहा था, कितने घंटे काम हो रहा था एक यूनिट बनाने में, वो टाइम रिड्यूस होके 80% ही हो गया है. मतलब पहले अगर हम किसी चीज को बनाने में 1 घंटा लगाते थे तो अब उस चीज को बनाने में 0.8 आवर्स ही लगेंगे, ओनली 80%. तो जब 0.8 आवर्स लगेंगे तो लेबर कॉस्ट भी हमारा कम हो जाएगा. क्लियर है? मतलब एक तरफ तो जैसे वेज रेट बढ़ रहा है लेबर कॉस्ट भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लेबर टाइम कम हो रहा है तो उससे लेबर कॉस्ट कम भी हो रहा है. दोनों चीजों का इफेक्ट होगा हमारे वेरिएबल पोर्शन ऑफ लेबर कॉस्ट में. ये पॉइंट समझ में आया? The threshold for the overtime working remains at 19,000 units per quarter. Even though वैसे तो लॉजिकली अगर आप सोचो तो अगर हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, हमारा लेबर इनपुट कम हो रहा है, कम टाइम में हम ज्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें ओवरटाइम बाद में ही करना पड़ेगा. पहले अगर 19,000 यूनिट्स पे करना पड़ रहा था तो अब मे बी 20-25,000 यूनिट्स बनाने के बाद ओवरटाइम करना पड़ेगा. लेकिन क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया और उन्होंने बोल दिया कि अभी भी भले लेबर इनपुट कम लग रहा है तो भी ओवरटाइम के लिए जो थ्रेशोल्ड होगा वो 19,000 यूनिट्स ही होगा. 19,000 यूनिट्स के बाद अभी भी आपको ओवरटाइम करना पड़ेगा. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, fixed factory overheads and fixed element of selling and distribution cost will each rise by 20%. The variable element of selling and distribution cost will be unaltered. Fixed factory overhead as well as fixed selling overhead. Fixed वाला जो element है, only fixed element, both of these will rise by 20%. Variable में कोई change नहीं होगा. Required, prepare a statement to show under each cost classification given in the budgets the variable cost per unit and fixed cost will be effective in quarter 4. आपको स्टेटमेंट बनाना है जिसमें आपको ये बताना है क्वार्टर 4 में what variable cost per unit will be effective and what fixed cost will be effective. हर एक को हमें अलग 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 से लिखना है, टोटल करके बताना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. Prepare a flexible budget of production cost for quarter 4. क्वार्टर 4 का फ्लेक्सिबल बजट बनाना है. तो फ्लेक्सिबल बजट मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे बनने वाला बजट. सो वी हैव 3 लेवल ऑफ एक्टिविटीज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. 15,000 इज द मिनिमम रेंज, 18,000 इज द मोस्ट लाइकली रेंज एंड 21,000 इज द हाईएस्ट मैक्सिमम. तीनों पे हम बजट बनाएंगे. क्लियर है? स्टार्ट करें. सबसे पहले तो हमें एक एक क्वेश्चन को, एक एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है.
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर क्वार्टर 4. क्वार्टर 4 में क्या क्या एप्लीकेबल होगा. सो सबसे पहले कॉस्ट से देखते जाए कहां पर चेंजेस हो रहे हैं. फर्स्ट वी हैव डायरेक्ट मटेरियल. सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल में मटेरियल ए हमने देखा था ये वेरिएबल है. डायरेक्ट मटेरियल इज ऑलवेज वेरिएबल है. और हमें कुछ चेंज दिया है क्या इसमें? इज देयर एनी चेंज ऑफ प्राइस और एनीथिंग? कोई चेंज मेंशन नहीं किया है. तो जितना है अभी उतना ही रहेगा. ओके अभी कितना है? 6 रुपीज पर यूनिट. 6 रुपीज निकाला था हमने. देन डायरेक्ट मटेरियल बी, ये भी वेरिएबल था, चेक किया था हमने. इसका पर यूनिट कॉस्ट विल बी 5. थर्ड कॉस्ट इज प्रोडक्शन लेबर. प्रोडक्शन लेबर हमने देखा था ये सेमी वेरिएबल है. इट इज नीदर फिक्स नॉर वेरिएबल. तो इसको हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा. प्रोडक्शन लेबर को सेग्रीगेट करेंगे. वील मेक अ वर्किंग नोट. वर्किंग नोट फॉर सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सबसे पहला है प्रोडक्शन लेबर. प्रोडक्शन लेबर में जैसा हमने देखा रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स वी विल टेक फॉर क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 3 बिकॉज क्वार्टर 2 में देर इज ओवर टाइम वर्किंग. तो उसमें सिर्फ लेबर कॉस्ट ही नहीं है, नॉर्मल कॉस्ट नहीं है, उसमें ओवर टाइम प्रीमियम भी शामिल है. तो हम उसको साथ में कंपेयर नहीं कर सकते. फर्स्ट और थर्ड में देर इज नो ओवर टाइम प्रीमियम वेर एज सेकेंड में है. तो सेकेंड कैन एज इट इज नॉट बी कंपेयर्ड विथ फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर फिगर्स. तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे सो वील टेक ओनली द फिगर्स ऑफ क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 3. प्रोडक्शन लेबर का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी difference in total cost divided by difference in quantity. Difference in total cost will be 2,30,000 minus 1,80,000 quarter 3 and quarter 1 divided by difference in quantity. quarter 3 में हमने बनाए 15,000 units and quarter 1 में 10,000. बताइए कितना है? 10 rupees. So find the fixed portion. 80,000. Okay. Now this we have to insert over here. The cost applicable for quarter 4. इसमें कोई चेंज है क्या प्रोडक्शन लेबर कॉस्ट में? हाँ, दो चेंजेस हैं. एक तो लेबर रेट में इंक्रीज हो रहा है, दूसरा लेबर इनपुट कम हो रहा है. बोथ ऑफ दीज विल इफेक्ट ओनली द वेरिएबल पोर्शन. करेक्ट? नो. लेबर रेट में जो इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल दोनों में इंक्रीज हो रहा है. इनपुट में जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ वेरिएबल को इफेक्ट करेगा क्योंकि वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ दैट इनपुट. कितने घंटे आप काम करते हो उसके हिसाब से आपको वेरिएबल एलिमेंट पे किया जाता है. लेकिन जो आपकी फिक्स्ड सैलरी होती है अगर कभी इंक्रीमेंट होगा तो वो फिक्स सैलरी भी इंक्रीज होगी ना, सिर्फ वेरिएबल ही तो नहीं होगा. कुछ बोला नहीं है उन्होंने कि सिर्फ वेरिएबल वाला पोर्शन ही इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ बोला है वेज रेट्स आर इंक्रीज्ड. लेबर को हम फिक्स्ड में दे या वेरिएबल में दे, दोनों ही वेजेस है. अगर वेजेस बढ़ रहे हैं तो फिक्स्ड भी बढ़ेगा, वेरिएबल भी बढ़ेगा. ये समझ में आया? तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना जहां पर वेज रेट इंक्रीज हो रहा है उसका इफेक्ट दोनों में जाएगा, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड. जो सेकेंड वाला पॉइंट है जिसमें लेबर इनपुट कम हो रहा है उसका इफेक्ट सिर्फ वेरिएबल में ही जाएगा क्योंकि लेबर इनपुट से फिक्स्ड लेबर कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है. ओके, तो इफ वी सी द वेरिएबल प्रोडक्शन लेबर, तो प्रोडक्शन लेबर का पर यूनिट कॉस्ट आया था 10 रुपीज. ये इंक्रीज होगा बाय 12.5%. ओके, सो दिस विल नाउ बिकम मल्टीप्लाइड बाय 112.5%. मैं लिख सकती हूँ या तो कैलसी पे आप प्लस 12.5% करो या इसको ऐसे भी लिख दो, बात एक ही है. एंड
दिस इज रिड्यूस टू 80%, क्योंकि लेबर इनपुट अब सिर्फ 80% ही रह गया है, तो कॉस्ट भी अब 80% ही हो जाएगा. जब टाइम उतना ही लगेगा तो कॉस्ट भी उतना ही लगेगा. सो मल्टीप्लाइड बाय 80%, 9 रुपीज. ओके. फिक्स्ड में देखें, प्रोडक्शन लेबर का जो फिक्स्ड एलिमेंट है इट्स 80,000. इसमें भी इंक्रीमेंट होगा, जैसे लेबर रेट बढ़ा है 12.5% से, वो यहां पर भी रिफ्लेक्ट होगा. दिस वाज 80, so it will be 80 plus 12.5%, 90,000. ये क्लियर है. इनपुट का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज फिक्स्ड. इट्स नॉट वेरिंग विद द आवर्स टेकन. चेंज नहीं हो रहा है. ये वेरी करता है, इसलिए यहां पर ये वेरिएबल इनपुट का भी इफेक्ट हो रहा है. ओके. देन प्रोडक्शन लेबर में हमने एक ओवर टाइम भी दिया हुआ है ना. देयर इज गिवन कि अगर 19,000 से ज्यादा प्रोडक्शन करते हो तो ओवर टाइम भी अप्लाई होगा. तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में तो हमें वो भी लिखना पड़ेगा. कॉस्ट स्ट्रक्चर में ओवर टाइम भी आएगा. सो ओवर टाइम प्रीमियम इज 50%. जितना भी ओवर टाइम होगा उसमें ये नॉर्मल रेट तो दिया जाएगा, प्रीमियम अलग से 50% दिया जाएगा. तो नॉर्मल रेट तो हमने यहां पर लिख ही दिया है. अगर ओवर टाइम नहीं हुआ तो लेबर कॉस्ट इतना ही लगेगा. अगर ओवर टाइम होता है तो ये 9 रुपीज प्लस 50%, दैट इज 4.5 रुपीज. दिस विल बी ओनली फॉर प्रोडक्शन मोर देन 19,000 यूनिट्स. सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट कॉस्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी सेमी वेरिएबल है. इनको भी हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा. करिए सेग्रीगेट, निकालिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना और फिक्स्ड कॉस्ट कितना. कितना 60. इनमें कोई चेंज है? थर्ड पॉइंट में बोला है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एंड फिक्स सेलिंग ओवरहेड दे विल राइज बाय 20%. तो वेरिएबल एलिमेंट में तो मतलब कोई चेंज नहीं है, फिक्स्ड ओवरहेड में है. ओके. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऐसा ही आ जाएगा. दिस इज वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. थ्री फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 60,000 प्लस 20% 72,000. Next cost is depreciation. Depreciation is a fixed cost. 20 है, कोई चेंज भी नहीं बोला है, तो इतना ही रहेगा. Depreciation 20,000. Next admin expenses. इसमें भी कोई चेंज नहीं बोला गया है. Administration expense 25,000. Next is selling and distribution. This is semi variable. इसको भी segregate करना पड़ेगा. करिए segregate. Now for segregation of this you will use the sales quantity, not production quantity. Selling overhead है ये, so it is a function of sales quantity. ये आ रहा है सबका, नहीं आ रहा है? क्या हुआ पूजा? What happened? We got 2 per unit variable cost, then you will multiply by sales unit of
सेल्स, बट आपके लिए अच्छा है कि क्वार्टर 4 में सेल्स एंड प्रोडक्शन आर इक्वल, तो आपको उसमें नहीं सोचना है. बट वेन एवर देर इज सेलिंग ओवरहेड, हमेशा आप जब बेचोगे तो ही लगाओगे ना. स्टॉक में आपके पड़ा हुआ है तो आप उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैसे लगा सकते हो? ओके, इट इज रिलेटेड टू ओनली सेल्स ऑलवेज बाय डिफॉल्ट, बोले या ना बोले क्वेश्चन में. जब आप बना रहे हो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वगैरह है, दे आर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन. जब आप बना रहे हो तभी वो इनकर किए जा रहे हैं. सो दे विल बी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन क्वांटिटी. वेराज सेलिंग ओवरहेड जो यूनिट्स आप बेच रहे हो उनसे रिलेटेड है. जो यूनिट्स बेचे उनके लिए आपने वो इनकर किया, पैकिंग वगैरह, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर द सेलिंग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट. फिक्स तो हो गए आपके एडवर्टाइजमेंट वगैरह, दे आर द पीरियड कॉस्ट, उनको तो हम P&L में एज इट इज चार्ज करते हैं. बट द वेरिएबल कॉस्ट जिनको हम लेते हैं एक्चुअली कॉस्टिंग में, वो वेरिएबल तो तभी लगेगा जब आप यूनिट को बेच दोगे, उसकी पैकिंग करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पहुंचा दोगे उसे कस्टमर तक, ओनली देन दैट विल बी इनकर्ड. ये आ रहा है सबका? सो दिस सेलिंग ओवरहेड विल बी 2 एंड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड विल बी, इसमें कोई चेंज है? हाँ, फिक्स वाले में चेंज है ना, 20% से बढ़ रहा है. सो दिस विल बी 20,000 प्लस 20%, 24,000. क्लियर है? इनका टोटल कर लो. सो दिस विल बी योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. दिस विल बी इंक्लूडिंग ओवर टाइम प्रीमियम. इसी के साथ नीचे एक लाइन में लिख देना एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम प्रीमियम, जिसमें आप ये वाला काउंट नहीं करोगे. ओके, तो जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे, जो भी हम बजट बनाएंगे, उस बजट में वेन एवर वी विल प्रोड्यूस लेस देन 19,000 क्वांटिटी, तो हम एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम प्रीमियम वाला अमाउंट यूज करेंगे. जब भी 19,000 से ज्यादा क्वांटिटी हम बना रहे हैं तो हम ये वाला अमाउंट यूज करेंगे. 29.5. so this will be 25. 150. 1,50,000. इसमें कोई डाउट? So this is the first part of the question. Second part में now we have to prepare flexible budget. Okay.